Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online class of physics and it's lecture number 8. Today we are going to start the new chapter, chapter number 2, and the name of the chapter is measurement. Physics has played a vital role in daily life, which I have already told you. Similarly, physics has also registered its glory in commerce and industry. फिजिक्स ने तिजारत और सनत में भी अपना अहम किरदार अदा किया है, जहां दिन रात में कई मर्तबा नाप तोल का सिलसिला जारी व सारी रहता है. Thus we can say that measurement is the common practice of everyday life. This routine work starts from morning till late hours in the night. हर सुबह आप दूध वाले से पैमाइश शुदा सांचे की मदद से दूध लेते हैं ना, 1 लीटर 2 लीटर. चलिए दुकान पे जाके लेते हैं तो एक मेजर सिलेंडर पैमाइश का सांचा उनके पास होता है, जिसकी मदद से आप 1 लीटर 2 लीटर या जितना आपको चाहिए होता है दूध लेते हैं. इसी तरीके से बात करते हैं किराने की दुकान की. किराने की दुकान से ग्रोसरी करते वक्त हर चीज वजन करके ली जाती है, जैसा कि 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, इतनी दालें, इतना किलोग्राम चावल होता है ना. इसी तरह से आपका वास्ता पड़ा होगा कपड़े की दुकान पर. दुकानदार हमेशा मीटर स्केल की मदद से कपड़ा नाप कर और काट कर देता है. गो के इनका मीटर स्केल आयरन का बना हुआ होता है, ये लकड़ी का बना हुआ है, मगर पैमाइश हर जगह हो रही होती है. कभी भी खरीद फरोख्त की बात की जाए तो पैमाइश का सिलसिला जारी रहता है. Thus, every material object has some characteristics which are to be measured to specify them. हर चीज की कुछ ना कुछ खुसूसियात है जिनको स्पेसिफाई करके ही और उनकी मेजरमेंट करके ही उनके बारे में वाज़ेह तौर पर बताया जा सकता है. मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ ब्रिक, आपके पास अगर ईंट है, टू स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्रिक, इट्स लेंथ, width, height and mass are to be measured. Such characteristics are called physical quantities. These physical quantities are further classified into two, that is fundamental quantity and derived quantity. Fundamental quantities क्या quantities हैं? ये ऐसी 7 quantities हैं जिनको सवादीदी तौर पर फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी करार दिया गया है, जिनके नाम आपको व्हाइट बोर्ड पर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे होंगे. हैव यू सीन इट? फंडामेंटल क्वांटिटी इज यूज्ड एज पिलर फॉर अदर क्वांटिटीज. वन मोर थिंग, these fundamental quantities are independent quantities. Now we talk about the derived quantity. It's the second kind of physical quantity. Derived quantity are those physical quantities which can be obtained by the combination of fundamental quantity. The other name for fundamental quantity is base quantity, okay? And the second thing is that this can be obtained by the multiplication, division of the fundamental quantity, okay? And second point is that it depends on base quantity, or we can say fundamental quantity. For example, you have seen the name here, force, this is one of the example. Density is the second example. Volume is the third example. When we talk about the force, it is the product of mass and acceleration. When we talk about the density, it is the ratio between mass and volume. And volume itself is the product of length, breadth and height. It has 3 dimensions. It means that derived quantities are those quantities which are extracted from the fundamental quantity. Derived quantity को fundamental quantity में से अखज़ किया जाता है. So that's why they are called derived quantities. Now let's talk about the units.
Since the quantity is fundamental, so the units are fundamental units. What are these units? जब भी हम किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी चीज में तो उनको क्या कहते हैं? यूनिट्स. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फंडामेंटल यूनिट्स, whereas derived quantities can be expressed in terms of derived units. चलिए इसकी मिसाल इस तरह से समझते हैं. जब हम बात करते हैं किसी वजन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं? 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम. जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं वो भी मेजरमेंट कौन सी? लेंथ की, तो हम बोलते हैं 5 मीटर्स. जब हम किसी लंबाई को नाप रहे होते हैं तो 5 मीटर्स कहते हैं. हम ये तो नहीं कहते ना किराने की दुकान पे जाके कि भाई हमें 5 शुगर दे दो. हम ये तो नहीं कहते ना दुकानदार कपड़े की दुकान के पास जाके कि हमें 5 दे दो. नहीं, हम क्या कहते हैं? शुगर वाले को बोलते हैं शुगर खरीदनी हो, चावल खरीदना हो, आटा खरीदना हो तो हम कहते हैं 5 kg. मतलब हम इस नंबर को किसी यूनिट से स्पेसिफाई करते हैं कि हमें 5 kg चाहिए, हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए. ऐसा ही है ना. कोई ये तो नहीं कहता ना कि 5 दे दो, 6 दे दो. हाँ, जिनकी काउंटिंग की जा सकती है. मिसाल के तौर पे हम पेंसिल की बात कर रहे हैं, हम कहेंगे 5 पेंसिलें दे दें, 5 किताबें दे दें, तो ये काउंटिंग बेस्ड है. मगर जब इसी किताब की पैमाइश की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे क्या कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है. ऐसा ही है ना. हम किसी किताब की बात करेंगे तो किताब की क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे 1 किताब, 2 किताब. मगर जब इसकी पैमाइश की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे? इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ या विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है. ऐसा ही है ना. तो इस तरह से हमें पता चला कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल यूनिट से और डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड यूनिट से वाजे कर सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 नजर आ रही हैं. लेंथ को हम किस यूनिट से स्पेसिफाई करते हैं? इसका फंडामेंटल यूनिट क्या है? मीटर्स. इसका मीटर्स तो है मगर ये आपको हम आगे जाके क्लास में बताएंगे कि मीटर ही क्यों कहा. लेंथ तो सेंटीमीटर्स में भी मेजर की जा सकती है, लेंथ तो जो है वो किलोमीटर्स में भी मेजर की जा सकती है. जैसे कि डिस्टेंस मेजर करना हो एक जगह से दूसरे इलाके का तक का तो हम किलोमीटर्स में बात करते हैं, माइल्स में भी बात करते हैं. इन सब के बारे में हम आपको मजीद डिटेल्स देंगे नेक्स्ट क्लासेस में. हम मास की बात करते हैं. मास का फंडामेंटल यूनिट क्या है? किलोग्राम. जब हम किलोग्राम कह रहे हैं तो क्या मास सिर्फ किलोग्राम में ही मेजर होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है. ये मिलीग्राम में भी मेजर हो सकता है, सेंटीग्राम में मेजर हो सकता है. आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल इसी चैप्टर में इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में देंगे. इस तरह से हम टाइम की बात करते हैं. इसका फंडामेंटल यूनिट सेकेंड है. जब बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट की तो इसका फंडामेंटल यूनिट है एम्पियर. जब हम बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की तो इसका फंडामेंटल यूनिट है कैंडेला. जब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की तो इसका फंडामेंटल यूनिट है केल्विन. और जब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की तो इसका फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? मोल. यकीन तौर पर आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ चुका होगा कि दीज आर द क्वांटिटीज एंड दीज आर द यूनिट्स. ये क्या है? ये क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो आपको बोर्ड पे नजर आ रही हैं. साथ में ब्रैकेट में जिसको मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ है वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं. बात कर लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की, उनकी यूनिट्स की. जैसे कि मैंने बताया डिराइव्ड क्वांटिटी फोर्स है जो कि प्रोडक्ट है मास से एक्सेलरेशन का. इसका यूनिट क्या है? डिराइव्ड यूनिट इज न्यूटन. ये कैसे डिराइव किया गया इंशाल्लाह अजीज आने वाली क्लासेस में आपको बताएंगे. अगर देखा जाए तो इसका यूनिट अगर आपको एक्सेलरेशन का यूनिट अभी तो नहीं पता, इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मास का होता है किलोग्राम. तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन. Inshallah, in the upcoming class, we are going to say all these things and we are going to explain all these things, inshallah. जब बात करते हैं डेंसिटी की तो इसका यूनिट क्या है? डिराइव्ड यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब डिपेंड करता है ना. ये तो मैंने आपको एक ऐसा सिस्टम बताया, वरना सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है. बात करते हैं वॉल्यूम की तो मैंने यहाँ पे 2 यूनिट्स लिखे हुए, मीटर क्यूब. ये आपको बताऊंगी कि मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में क्या फर्क है, इसमें से क्या कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हैं और सिस्टम ऑफ यूनिट्स किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं. तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम करते हैं. इंशाअल्लाह अजीज नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे. जब तक के लिए इजाजत. अल्लाह निगहबान.